you everybody for staying with us. Education एक ऐसा सेक्टर है जो जिस सेक्टर से मेजरमेंट होता है एक स्टेट और एक कंट्री के प्रोग्रेस का सर. And Chhattisgarh has taken a lot of initiatives when it comes to the education sector. बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, बहुत यूनिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. और क्योंकि, you can correct me if I'm wrong, the literacy rate of Chhattisgarh is about 80%, which is a lot better than a lot of states of our country. I would like to start with asking you what specific policies has the Chhattisgarh government taken, policies, initiatives, which have been implemented to ensure universal access to education, particularly in the remote or underserved areas of the state. Okay, so let me begin by saying that what is it that is needed for education? You need a teacher, you need some children who will go and study in a school, and then you need basic infrastructure inside the school, reading material, learning material, and so on. In the last few years, we had really suffered in the field of education for several reasons. One, in the Maoist areas, several schools were closed down because of the excessive Maoist violence. Because it was just mentioned a little while back, we have been able to reverse that to a very large extent, and Maoist violence has really gone down. I am very happy to tell you that more than 300 schools have been reopened in those areas. And those children are now able to study in those schools. So schools are reopened. The second important thing which was happening is that there was no teacher recruitment, and teachers were obviously retiring over a period of time. So there were several schools where you either had only one teacher or no teacher at all. After this government came in, we started teacher recruitment, and in the last 5 years, more than 30,000 teachers have been recruited, which has resulted in teachers being available in schools. But we suffered a major setback with COVID. So, you know, the new government came in 2019, 2020, early 2020, there was complete lockdown all over the country. All the schools were closed. Now, at that point of time, the state government really came up with several very interesting models. One, the state of Chhattisgarh was the first state in the entire country to start online classes on a very large scale. We started a program called Padhai Tumhar Dwar, which in Chhattisgarh basically means education at your doorstep. We started a portal where not only live online classes were happening, but teachers were uploading various kinds of programs, videos, PowerPoint presentations, etc. And more than 20 lakh children registered themselves on this portal within the first 2 months. More than 2 lakh teachers registered. And I must tell you, we're really very proud that wherever there are Hindi-speaking people, we have registered on this portal children from as far away as Nepal, as Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. So Padhai Tumhar Dwar became an instant success. As Corona went down, our teachers, because the schools were still not reopened, but our teachers started doing what we call mohalla classes. So they will gather children in one place, and in a mohalla they will do classes. Our teachers went, you know, there was a teacher, the Honorable Prime Minister has mentioned him in his Mann Ki Baat. In Jashpur, very far remote area, he would take his motorbike out with a LED screen on the carrier of the motorbike and go to the remote villages, and then he will play various kinds of videos, etc. on that LED screen, collecting children and running a class in that area. So all of these things happened remarkably well. I have to just tell you two more interesting things which happened. One, the state government really focused on quality of education. So why would children go to school if they don't learn anything? Children must learn. And for that, the state government decided that we will have better schools
with better quality of education, better infrastructure, better teachers, etc. With a very modest number of 51 schools we started 3 years back, the schools which are named after the great social worker of Chhattisgarh, Swami Atmanand. We call it Swami Atmanand School. 51 schools. Today we have 727. And I must tell you, earlier there used to be, people would actually go and do some kind of sifarish to get admission of their children in schools like DPS. Today, the sifarish is for the Swami Atmanand government schools. For each seat, there are more than 40 applications for these schools. Okay. So, wonderful. ये बहुत यूनिक एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का, जिस पे मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी. बट आपने दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मेंशन किए. एक कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में स्कूल्स खुले और बच्चों ने आके शिक्षा प्राप्त की. दूसरी आपने बोला टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया गया. फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू सर, did you find any hesitance in Naxal affected areas? Was there any fear in getting out of their homes and coming out of their houses and going to the school? या एक कॉन्फिडेंस था फैमिलीज में कि हाँ हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा, गुड क्वालिटी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड विदाउट एनी फियर. देखिए, चाहे नक्सल अफेक्टेड एरिया हो चाहे कोई भी एरिया हो, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. तो जब बहुत ज़्यादा नक्सल वायलेंस थी उस टाइम पर हम लोगों ने इस स्टेट में शुरुआत की थी. पोर्टा केबिन्स बनाते थे, पोर्टेबल मटेरियल यूज़ करके कैबिन्स बनाते थे और वहाँ पर बच्चों को हम रेजिडेंशियल स्कूल चलाते थे. तो जो दूर गांव के बच्चे थे जहाँ पर नक्सल अफेक्टेड बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ थी, वहाँ के बच्चों को उनके माता पिता उन पोर्टा केबिन्स में रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेजते थे. जैसे जैसे वी वर एबल टू विन बैक एरियाज़, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोगों की डिमांड खुद की शुरू हुई कि हमारे गांव में स्कूल खोल दीजिए. और कलेक्टर्स ने उसके बाद में जब कहा और मेहनत करी तो हम लोग ऐसे स्कूलों को खोल पाए. तो डर तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों में बहुत डिमांड है कि स्कूल खुलने चाहिए. ऑलराइट, आई थिंक ये दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि हमारे बच्चे आगे आकर पढ़ पा रहे हैं इन नक्सल अफेक्टेड एरिया. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट सर. ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात की. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट किया है टू रीच द लास्ट स्टूडेंट इन लाइन. सो मुझे तो लगता है टेक्नोलॉजी तभी काम आ सकती है जब आप टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करें. हम लोग अगर सेंट्रलाइज करके काम करने की कोशिश करें कि सरकार कोई एक टेक्नोलॉजी कंपनी लेकर आएगी और वो कंपनी इस काम को करेगी, तो शायद वर्षों लग जाएंगे, पूरा नहीं होगा. हम लोगों ने इसको रिवर्स किया. हमने सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए एक पोर्टल बनाया और उसके बाद टीचर्स से कहा, हम वी डिड लार्ज नंबर ऑफ वेबिनार्स एंड अदर मीटिंग्स विद टीचर्स. लैक्स ऑफ टीचर्स अटेंडेड देम और हमने उनसे कहा कि भाई आप शुरू करिए और आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आप उससे शुरू करिए. लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बना करके अपलोड करना शुरू कर दिया. मैं एक गांव में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि एक छोटा सा स्पीकर रखा हुआ है. मैं तब तक जानता नहीं था कि ये चीज़ होती है. तो मैंने कहा ये क्या है, ये स्पीकर रखा हुआ. वो दे वर एक्चुअली इन रिमोट विलेजेस दे वर यूजिंग एलेक्सा. और वो एलेक्सा से सवाल पूछते थे कि फलां देश का प्रधानमंत्री कौन है और फलां राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो. एलेक्सा से जवाब आता था. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी रिमोट एरिया. और मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं एलेक्सा नहीं यूज़ करती हूँ. तो मतलब देखिए, टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह से एक जगह पे गांव में ये बात हुई कि साहब हमारे पास तो डेटा और सिग्नल बड़ा वीक है, तो हम वीडियोस को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करें. तो उन्होंने कहा कि अगर आप सिग्नल नहीं भी है तो ब्लूटूथ से कर सकते हैं. तो अब ब्लूटूथ को उन्होंने वहाँ लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पे बड़ा पॉपुलर है, आप गांव में जाकर के बात करेंगे, बुलटू के बोल बोलते हैं उसको. ब्लूटूथ का बुलटू बन गया और वो रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल टेलीफोन्स पर. और जब ट्राइबल एरियाज में हाट बाजार बहुत लगती है तो गांव-गांव से लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन लेकर के आते हैं और वो ब्लूटूथ से उस लेसन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर अपने गांव में जाकर के उसी मोबाइल फ़ोन से उसको बच्चों को सुना देते हैं. और सीखा कैसे उन्होंने? सीखा ऐसे कि जहाँ पर रेडियो नहीं आता, टेलीविज़न नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लोग इसी तरह से ब्लूटूथ से फिल्मी गाने ट्रांसफ़र करके अपने गांव में सुना करते थे. तो उन्होंने कहा फिल्मी गाने कर सकते हैं तो लेसन्स भी कर सकते हैं.
तो कहने का मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये कोई बड़ी सी टेक्नोलॉजी कंपनी ने नहीं की है, ये हमारे टीचर्स ने किया है। और सारा का सारा क्रेडिट मैं तो छत्तीसगढ़ के टीचर्स को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। So talking of teachers, teachers of course play an integral part in any education system and in a student's life. And छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत मेजर्स लिए हैं टू इम्प्रूव टीचर क्वालिटी, टू मोटिवेट टीचर्स बेटर। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो उसमें भी वही है, हम लोग कोशिश ये करते हैं, देखिए इन ए गवर्नमेंट सिस्टम आप फाइनेंशियल एडवांटेज किसी को दे नहीं सकते, आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस नहीं दे सकते, तो आप कर क्या सकते हैं? एक चीज़ कर सकते हैं आप, रिकग्निशन। हम लोगों ने कोशिश ये करना शुरू की कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी उस वक्त, क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग पे तो पूरी तरह से बैन था। और टीचर्स आपस में मिलें, बात करें, और फिर जो टीचर अच्छा करते थे, तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो मैंने आपको बताया पढ़ई तुम्हारे द्वार का पोर्टल था, उसमें एक श्रृंखला शुरू करी, हमारे नायक। एवरी डे वन टीचर would be the hero of the day. It would be either a male or a female, it doesn't matter, hero of the day। और उनकी पिक्चर डाल करके वो हम लोग करते हैं, आज भी चल रहा है, कि उन्होंने क्या बढ़िया काम किए हैं जिससे कि शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। And I tell you sir, ये बहुत मोटिवेट करता है, बिकॉज मेरी माँ, मेरी मदर खुद टीचर रही हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये टीचर को किस लेवल की मोटिवेशन देता है जब आप एक उनके गुड इनिशिएटिव्स को, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को पब्लिकली एनकरेज कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, अपने इंस्टा पे डाल रहे हैं। कई लोगों के जो जर्नलिस्ट से दोस्ती है, तो वो उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के उन्होंने अखबारों में भी छपवाया, तो दे एक्चुअली फील गुड। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें। ओके सर, कमिंग टू स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसके बारे में आपने मेंशन किया, दिस इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव। व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड दिस? ये क्यों शुरू किया गया? स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलते हैं इससे, एंड व्हाट डू स्टूडेंट्स गेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ एंड इन फेसिंग द सोसाइटी इन फ्यूचर? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव। एक दिन हम लोग सब बैठे थे, डिपार्टमेंट का रिव्यू चल रहा था, और जैसे यूजुअल होता है, हम लोगों ने बताया इतने स्कूल खोले, इतने टीचर किए, ये सब। तो मुख्यमंत्री जी ने बीच में टोका। उन्होंने कहा, भाई तुम जो स्कूल खोलते हो वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए खोलते हो जो स्कूल नहीं जाते? क्या ऐसा कोई स्कूल खुलेगा जहाँ पे आईएएस अफसरों के बच्चे पढ़े, आईपीएस अफसरों के बच्चे पढ़े, जजों के बच्चे पढ़े, बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में? ऐसा कर सकते हो तो बताओ। तो अब हम सब लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये अगर मुख्यमंत्री जी ऐसी चीज़ कह रहे हैं, तो हमने कहा ज़रूर करके दिखाएंगे, लेकिन हमको आप ये मौका दीजिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, कुछ उसमें पैसे मिल जाए, टीचर्स अच्छे करें, सिफारिशी टीचर ना आए। तो बिटवीन यू, मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरी सिफारिश नहीं होगी कभी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए वो स्कूल्स जहाँ पर प्रिंसिपल्स अच्छे थे, और उनसे कहा कि भाई आपको एक फ्री हैंड है पूरा, आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बेस्ट पॉसिबल लेबोरेटरीज, बेस्ट पॉसिबल लाइब्रेरी। और हमने कहा कि भाई आप लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रतियोगी परीक्षा की किताबें होंगी। वाई नॉट हैरी पॉटर, वाई नॉट अगाथा क्रिस्टी, वाई नॉट एनिट ब्लाइटन? हमारी लाइब्रेरीज में आपको ये सब मिलेगा कि बच्चे अगर जिसको पढ़ने में, मेरे बेटे ने अंग्रेजी पढ़ना सीखी हैरी पॉटर से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाई नॉट? तो इसको ओपन कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज हमारा एक रिपोर्ट कार्ड बनता है बच्चों का, जिसको हम 360 डिग्रीज रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, 10 पेज का होता है। उसमें बच्चे की हर कैरेक्टरिस्टिक होती है, और बच्चों के पेरेंट्स के साथ में उसको इंटरैक्टिव तरीके से करते हैं। तो बात सिर्फ अंग्रेजी माध्यम की नहीं है। हमारे जो 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, उसमें आधे से कुछ कम हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें भी हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं। बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की है कि बच्चा वहाँ से पढ़ के निकले तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हम देश में कहीं भी जाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे। ये चीज़ सर, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर सेक्टर्स में ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ बैलेंस करने का प्रयास रहता है। In that context, beyond traditional education, what efforts have been made in Chhattisgarh
to do that, number one. Number two, to help our students, help our children be ready for the future in terms of skill development, vocational training, beyond the traditional education system, जिसमें हम सब पढ़े हैं. तो आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे. 2 सवाल हैं, मैं दोनों का एक-एक करके जवाब देता हूँ. पहली चीज़ जो आपने कहा कि कुछ स्किल्स होनी चाहिए. अगेन मैं मुख्यमंत्री जी की बात कहूँगा. उन्होंने एक दिन ये कहा कि भाई तुम 12वीं पास करने के बाद क्या होता है, बच्चा जाके बीए करता है, बीए करने के बाद नौकरी नहीं मिलती. तो बच्चों को कुछ हुनर सिखाओ. कुछ हुनर सीखेंगे तो उसके बाद उसमें उनको कुछ न कुछ रोज़गार मिलेगा, कुछ काम कर पाएंगे. हमने उस समय लगभग 1.5 साल 2 साल पहले शुरुआत की कि हम 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी देंगे. और ऐसे स्कूल चुने जहाँ पर ITI और स्कूल आसपास हैं. और जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे उनको साथ के साथ ITI के ट्रेड सिखाना शुरू किए, जिसमें मोटर मैकेनिक भी है, डीजल मैकेनिक भी है, प्लम्बिंग भी है, स्टेनोग्राफी भी है. मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज 1500 बच्चे ऐसे निकले हैं इस साल जिनको 12वीं का स्कूल सर्टिफिकेट भी मिला है, 12th बोर्ड का, और ITI का सर्टिफिकेट भी मिला है. और मुझे ये बताते हुए और भी खुशी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ MSME है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उन्होंने अब ये तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू करेंगे. छत्तीसगढ़ से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने किसी ऑफिसर को हमारी कमेटी में नॉमिनेट कर दीजिए. तो इस पर काम हम लोग कर रहे हैं. दूसरा जो आपने कहा ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं. और 2-3 छोटी छोटी चीज़ों आपको मैं एफर्ट्स बताऊंगा. एक तो हम लोगों ने संविधान के ऊपर एक पूरी पुस्तक बना करके स्कूलों में बांटी है और हम कोशिश करते हैं कि हम संविधान पर बातचीत बच्चों के साथ करें ताकि देश की और डेमोक्रेसी की बात हो. छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों के ऊपर एक पुस्तक तैयार की है कि लोग, आप बाकी लोगों को जानते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के जो महान लोग हुए हैं उनके बारे में आप जानिए. तो वो भी पुस्तक हम लोग बांट रहे हैं. एक हम लोगों ने तय किया है कि हर सैटरडे को हम बैगलेस डे करेंगे, जिसमें बस्ता लेके नहीं आएंगे बच्चे, और बच्चों के साथ में कुछ हम इस तरह की बातचीत करेंगे जिसमें कि समाज की, परिवेश की, फैमिली की बातचीत हो, वो वैल्यूज आई की थिंक ये बात. बच्चों का फेवरेट दिन होता हाँ, होगा. बच्चों का बिल्कुल फेवरेट दिन होता है और बहुत खेलते कूदते हैं बच्चे, बहुत मजे करते हैं. All right, with that, I'm going to wrap this very fascinating discussion. Dr. Alok Shukla, thank you very much for joining us at the Mirror Now Summit and sharing your thoughts and the kind of initiatives that the Chhattisgarh government has taken. Thank you very much, sir. Thank you.